Good morning, student. And today we are going to discuss the next topic of Unit Second. The name is the scramblers. And first of all, I'm going to explain what is scramblers and what is the use of the scramblers in digital communication. Now, let us take the first paragraph. In communication application, it is essential to transmit the message in such a form that only desired receiver should able to understand it. This concept basically belongs to the data encryption. In that, in digital communication, there is a advantage in which there is a possibility of the data encryption in which the transmitted data is received only by the receiver who know the sum code, means who a particular receiver will decrypt that data and get the original data which are transmitted from the transmitter. So this is the property of the digital communication already discussed. So by using the scrambler, we done this process, means a particular receiver can receive the data. Scrambling is a coding operation applied to the message at the transmitter. स्क्रैम्बलिंग एक आपका कोडिंग ऑपरेशन होता है जो विच इज़ अप्लाइड टू द मैसेज एट द ट्रांसमीटर इंड पे हम मैसेज पे अप्लाई करते हैं. आफ्टर दैट द प्रोसेस ऑफ स्क्रैम्बलिंग विल रेंडमाइज द बिट स्ट्रीम, एलिमिनेट द लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ द जीरो एंड वंस विच माइट अफेक्ट द रिसीवर सिंक्रोनाइजेशन. बेसिकली जो स्क्रैम्बलिंग का प्रोसेस होता है उसके हेल्प से हमारे जो बिट स्ट्रीम होते हैं उसको रेंडमाइज करता है. रेंडमाइज इन द सेंस मीन्स इन द सम मैसेज देयर इज द सीक्वेंस ऑफ द जीरोज और वंस, मीन्स नंबर ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ वंस. देन बाय यूजिंग द scrambler we eliminate this type of the number of zeros and number of ones in the message by using the scrambler. Also by doing this which may affect, और अगर हम ये एलिमिनेट अगर नहीं करते हैं तो देयर इज़ द प्रॉब्लम विद द रिसीवर फॉर सिंक्रोनाइजेशन. तो सिंक्रोनाइजेशन जो रिसीवर में सिंक्रोनाइजेशन के प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम जो है स्क्रैम्बलिंग का यूज करते हैं और स्क्रैम्बलिंग के हेल्प से हम डेटा को रेंडमाइज कर देते हैं. रेंडमाइज इन द सेंस कि हम यहाँ पे अगर जीरोज का सीक्वेंस है या वन का सीक्वेंस है तो हम उसको ब्रेक कर देते हैं या उसको एलिमिनेट कर देते हैं. दिस इज़ द ओवरऑल सिंपल द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्क्रैम्बलर कि हम यहाँ पे चीज़ें करते हैं. नाउ लेट अस कंसीडर द फिगर. ये आपका एक टैब्ड शिफ्ट रजिस्टर है. टैब्ड शिफ्ट रजिस्टर मीन्स हियर वी आर यूजिंग द शिफ्ट रजिस्टर of k-1 bit, means simply if there are the n bit of the message, then the shift register of basically of the n-1 bits. So here we take the रजिस्टर एंड ऑलरेडी नोन द रजिस्टर विच आर मेड अप ऑफ द फ्लिप-फ्लॉप से बना हुआ है. तो हमने यहाँ पे ये और हमने यहाँ पे बिट्स को इंडिकेट किया हुआ है फॉर द मैसेज बिट विच आर इंडिकेटेड बाय द बी के and the remaining bits bk-1, bk-2 and so on up to the bk-1 means after shifting this bk bits can be represented at bk-1, means if there is one shift then this bit become the bk-1. If there is again next shift then it becomes the bk-2 and so on. And finally when the bits are come out from the shift register then its position is the bk-1. Also the clocks are used for synchronizing the each flip-flop. Already यहाँ पे connected आपको दिख रहा है. Now there is some more quantities like that alpha 1, alpha 2 and alpha 1. These are simply multiplied with the bits just like the constant, or here is the, and after that all the and final output will get from the multiplication of this gain, this tab gain. This is called tab gain alpha 1, alpha 2, alpha n. This is tab gain which is multiplied to the individual bits, and after multiplication and there is the modulo addition, yeah, modulo 2 adder addition is possible between all the bits, and finally here we get the output bk dash. तो बेसिकली ये जो फिगर आपको ये दिख रहा है कि हम इनिशियल में जब कोई भी हम पहला जो बिट्स मैसेज को देते हैं तो इनिशियल ऑल द
values of shift register will be the 0, and then here we get the message, and alpha 1, the alpha 1, alpha 2 and alpha, and the values are 1 or 0 depend upon कि वो कनेक्शन आउटपुट से मॉडुलो एडिशन होना है कि नहीं होना है. If there is a connection, then that tape gain is equal to 1, and if not connected, then tape gain is equal to 0. डिपेंड अपॉन कि वो हमें कनेक्शन आउटपुट से उसको कनेक्ट करना है कि नहीं करना है. तो दिस इज सिंपल द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टैप शिफ्ट रजिस्टर. एंड आफ्टर दैट ओके, द फिगर शोज, जो डिस्कस किया मैंने क्या लिखा लैंग्वेज में, द फिगर शोज एन स्टेज शिफ्ट रजिस्टर एंड बी के इज द बाइंडी इनपुट सीक्वेंस अप्लाइड टू दिस शिफ्ट रजिस्टर. ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया. हमारा जो बी के है वो बाइंडी इनपुट सीक्वेंस है और जिसको हम शिफ्ट रजिस्टर में अप्लाई कर रहे हैं. नाउ द सक्सेसिव बिट फ्रॉम द बी के एंटर द रजिस्टर. जो भी हमारे सक्सेसिव बिट्स होते हैं वो रजिस्टर में एंटर करते हैं एंड शिफ्ट फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट स्टेज करस्पॉन्डिंग टू ईच क्लॉक पल्स, और ऑन द बिहाफ ऑफ द ईच क्लॉक पल्स दे आर शिफ्टेड फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट स्टेट. एंड आफ्टर दैट एंड द आउटपुट ऑफ ईच स्टेज इज अप्लाइड टू द बाइंडेड टैप गेन. जो अभी मैंने डिस्कस किया, टेप गेन आपका जो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 अप टू द अल्फ़ा n, ये सारे गेन से मल्टीप्लाई होते हैं सारे बिट्स. एंड द फाइनली द आउटपुट बी के डैश इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग द बिट्स इन द रजिस्टर थ्रू अ सेट ऑफ द बाइंडेड टैप गेन्स एंड मॉडुलो 2 एडर्स. तो वही मैंने डिस्कस किया, जो भी हमारे शिफ्ट रजिस्टर में बिट्स हैं उन बिट्स को पहले गेन से मल्टीप्लाई करके एंड फाइनली आफ्टर लास्ट टू गेट द आउटपुट, एंड देयर इज द मॉडुलो 2 एडिशन बिटवीन ऑल द bits after multiplication with the gain. This is the simple description of the figure, and after that okay, now therefore the output will be, what will be the output simply bk dash is equal to alpha 1 bk minus 1, ये मॉडुलो एडिशन आपका है, देन अल्फ़ा 2 bk minus 2 मॉडुलो एडिशन अप टू द अल्फ़ा n bk minus 1. and so alpha 1 is equal to 1 simply means there is a direct connection and direct connection with the output, and alpha 1 is equal to 0 means there is a no connection. So depend upon the value of the gain, that is the 1 or 0, we can say there is a connection between the input bits to the output data. Now let us consider the example of the scrambler here, and also there is an unscrambler. Now अगर if we divide the figure in two part, and this part is called the scrambler and this part is called the unscrambler, and this is used as the transmitter and this used as the receiver. तो ये छोटा सा फिगर लिया गया है. इस फिगर में आपको ये एक्सप्लेन किया किस तरीके से आपका ये एक वर्क कर रहा है, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ. देयर इज़ अ शिफ्ट रजिस्टर ऑफ द 4 बिट. ये आपका 4 बिट का शिफ्ट रजिस्टर है. m dash k minus 4, m dash k minus 3, m dash k minus 2 and m dash k minus 1. एंड ऑल्सो आपके डिपेंड अपॉन आपके 4 रजिस्टर हैं, तो आपके 4 गेन्स भी होने चाहिए, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 एंड अल्फ़ा 4. बट हियर अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 आर 0 बिकॉज देयर इज़ नो कनेक्शन विद द आउटपुट. and after that here alpha 3 and alpha 4 is equal to 1 means they are connected with the output. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा किस तरीके से ये आउटपुट से आपका कनेक्टेड है. यहाँ पर है here connected means here we can say only the these two bits are added and finally here we get the m double dash k. So we can say m double dash k is equal to the m dash k minus 3 XOR m dash k minus 4. okay, एंड ऑल्सो इफ़ यू सी एट द आउटपुट, अगर हम आउटपुट को ऑब्जर्व करें तो आपको यहाँ पे दिख रहा है किस तरीके से ये जो हमारा एम के डैश है विच इज़ ऑल्सो फीडबैक टू द एम के माइनस 1, एंड आफ्टर ईच क्लॉक पल्स दे आर शिफ्टेड 1 by 1 bit to the डाउन साइड, एंड फॉर ईच बिट वी गेट द 1 bit आउटपुट. तो हम यहाँ पे ये इनपुट मैसेज को देंगे और ये m डबल डैश के जो मिल रहा है वो ये m
3 और m k-4 का XOR है. और एंड फाइनली हियर द आउटपुट mk dash इज आउटपुट, और सिंपली हियर दिस आउटपुट इज द XOR बिटवीन द mk एंड m डबल डैश k. इसके बीच का आपका XOR है. ओके, तो ये आपका जो फिगर था सिंपली एक एग्जांपल लिया गया था, और इस फिगर में आपको यही बताया किस तरीके से ये जो आपका फिगर है वो ट्रांसमीटर साइड यूज होता है टू इनकोड द डेटा या फॉर कोडिंग द डेटा एट द ट्रांसमीटर साइड. नाउ व्हाट इज़ द फिगर ऑफ द अनस्क्रैम्बलर एट द रिसीवर साइड अगर हम देखें तो सिंपली वो आपका रिवर्स फिगर ही है. मीन्स अगर इफ़ वी अगर आप देखें सिंसियरली अगर फिगर ऑब्जर्व करें तो सिंपली इट इज़ द मिरर इमेज ऑफ दैट लाइन. ये मिरर इमेज ही आपका बना हुआ है. अब ये आपका जो एम के था डैश ये लास्ट हो गया, अब ये पहले हो गया जस्ट लाइक द इनपुट हो गया. देन हियर इज़ द फीडबैक टू द मैसेज m-k-1. देयर आर द शिफ्ट रजिस्टर ऑफ द 4 bit ऑलरेडी डिस्कस इन द स्क्रैम्बलर पार्ट. And then there is the alpha 3 and alpha 4 is equal to 1, and the modulo addition between these two, and we get m double dash k, and finally we get the message bit mk, and which is the XOR of the mk dash and m double dash k. ये आपका XOR है. तो सिंपली आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा हमारा जो अनस्क्रैम्बलर है सिंपली इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द स्क्रैम्बलर. तो मैं जैसे अभी स्टार्टिंग मैंने डिस्कस किया कि आपका जो अनस्क्रैम्बलर होता है सिंपली जस्ट लाइक द डिक्रिप्शन पार्ट होता है, और वो अगर पर्टिकुलर रिसीवर के पास इफ़ पर्टिकुलर रिसीवर have this de-scrambler circuit, then that particular receiver easily decode the scrambler data that which are transmitted from the transmitter side, and this received particular by the that unscrambler data. जम्बैयर तो अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो ये आपका बाइनरी स्क्रैम्बलर रहा और ये आपका अनस्क्रैम्बलर रहा. एंड आफ्टर दैट ओके, तो अभी जब मैंने फिगर डिस्कस किया उसी फिगर में एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा है आपका, वो आप ज़रा ऑब्जर्व कर लें कि किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया. द फिगर शोज द स्कीमेटिक ऑफ द स्क्रैम्बलर. ये स्क्रैम्बलर का फिगर है एंड इट यूजेज ए 4 स्टेज शिफ्ट रजिस्टर. ये 4 स्टेज शिफ्ट रजिस्टर यूज किया जाता है. मीन्स देयर आर द 4 फ्लिप फ्लॉप हियर which are used as the 4 stage shift register with the tab gain alpha 1 and alpha 2 is equal to 0 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एंड alpha 3 and alpha 4 is equal to 1 वो भी मैं बता चुका हूँ. एंड mk इज़ द बाइनरी मैसेज सीक्वेंस एट द इनपुट टू द स्क्रैम्बलर, और mk हमारा जो है बाइनरी मैसेज सीक्वेंस एट द इनपुट है, वो स्क्रैम्बलर के लिए है. एंड इट इज एडेड टू द रजिस्टर आउटपुट, and it is added to the register output m double dash k to obtain the scrambled message m dash k. ओके, तो हमारा जो एम के है ये m डबल डैश k से ये आपका मॉडुलो एडिशन हो रहा है. एंड फाइनली टू गेट द एम के डैश एंड द स्क्रैम्बलर मैसेज एम के डैश इज ऑल्सो फीडबैक टू शिफ्ट रजिस्टर इनपुट. नाउ फ्रॉम द फिगर वी कैन से m डबल डैश k m double dash k इज इक्वल टू m dash k माइनस 3 XOR m dash k माइनस 4. ऑलरेडी मैं ये बता ही चुका हूँ मैं आपको. एंड आफ्टर दैट m dash k इज इक्वल टू m k XOR m डबल डैश k. मीन्स ये अगर आप फिगर देखें स्क्रैम्बलर का तो ये आपको दिख रहा होगा फिगर में कि किस तरीके से आपका जो है m डबल डैश के मीन दिस पार्ट जो ये पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक है, एंड फाइनली लास्ट जो लाइन जो आपका m डैश के दिस इज़ द एक्सॉर ऑफ दीज 2 बिट mk और m डबल डैश के. ऑलरेडी आपका यहाँ पे ये लिखा हुआ है. ओके, तो ये सिंपली इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द फिगर ऑफ द स्क्रैम्बलर हियर वी गेट द स्क्रैम्बल्ड आउटपुट in the form of the modulo addition form. Okay, and after that now again if we see the figure of unscrambled,
the schematic of the unscrambled, the unscrambler structure exactly reverse as compared to the structure of the scrambler. Reproduce the original message MK at its output. जो आपको दिख रहा है किस तरह का आउटपुट हो रहा है. और ये जो हमारा MK डैश या एक्चुअली आपको जो मिल कैसे रहा है, अगर आप उस चीज़ को थोड़ा ऑब्जर्व करें, आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें 1 मिनट. ओके, means here we can say that if we take the modulo addition between the m double dash k m double dash k and m dash k जो लिया गया है उसी चीज़ को लिया गया और उस और आपका जो यहाँ ये हो गया. एंड आफ्टर दैट देन m डैश के m डबल डैश के इज़ इक्वल टू, और m डैश के हमारा ये ऑलरेडी क्या है, हमारा ट्रांसमीटर साइड से आपका था m के एक्सॉर m के डबल डैश इज़ इक्वल टू ये मॉडल एडिशन m डबल डैश के, और ये आपका दो डबल आपका यहाँ पे 2 टाइम आपका m डबल डैश के लिखा हुआ, मीन इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड फाइनली वी गेट द मैसेज ईयर. तो सिंपली लॉजिकली अगर हम यहाँ पे कहना चाहें तो लॉजिकली भी आप प्रूफ कर सकते हैं और इस तरीके से हम यहाँ पे मैसेज को फाइंड कर सकते हैं. तो देखा किस तरीके से हमने स्क्रैम्बलर के हेल्प से इनपुट मैसेज को हमने एक कोडेड डेटा फॉर्म में कन्वर्ट किया या उसको हमने इंक्रिप्शन किया, और रिसीवर एंड पे पर्टिकुलर रिसीवर के पास अगर सेम अनस्क्रैम्बलर सर्किट है तो उस अनस्क्रैम्बलर सर्किट से पर्टिकुलर रिसीवर ही उसको ये डिकोड कर सकता है कि व्हाट द एक्चुअली मैसेज व्हाट ट्रांसमिटेड. ओके, नाउ लेट अस कंसीडर अ एग्जांपल. हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं और इजीली आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से यहाँ पे आपका ये वर्क हो रहा है. ओके, क्वेश्चन में आपका ये दिया हुआ है, ए डेटा स्ट्रीम, ये आपका मैसेज दिया हुआ है, इज एन इनपुट टू द स्क्रैम्बलर शोन इन द फिगर एंड आफ्टर द स्क्रैम्बलर आउटपुट एज्यूमिंग द इनिशियल कंडीशन ऑफ ऑल द रजिस्टर टू बी 0. ठीक है, तो अगर आप इस फिगर को ऑब्जर्व करें, हियर इज द ये हमने मैसेज को इनपुट दिया हुआ है और ये द MK डैश इज द आउटपुट, और आपका ये 3 बिट्स का आपका D1 D2 D3 आपका 3 बिट का शिफ्ट रजिस्टर है. उसके अकॉर्डिंग हमने इसको MK-1 MK-2 और MK-3 बिकॉज हियर आउटपुट फीडबैक टू द शिफ्ट रजिस्टर. तो अकॉर्डिंग टू द शिफ्टिंग हमने इसको MK-1 MK-2 और MK-3 मेंशन किया हुआ है. और हियर इफ़ यू सी द गेन हियर, गेम मीन्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3. अगर आप चीज़ों को ऑब्जर्व करें यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो आपका ये वाला गेन होता है, मीन D1 का गेन आपका क्या 0 है, बस वनली द गेन हियर अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 आपका गेन यहाँ पर है. ठीक है, बिकॉज देयर इज़ अ मॉडुलो एडिशन बिटवीन द D2 एंड D3 मीन्स एक्सॉर ऑपरेशन आपका है. एंड ये एक्सॉर ऑपरेशन होने की वजह से आपको जो वैल्यू मिल रहा हुआ है MK डबल डैश आपका मिल रहा है, एंड हियर इज़ द इनपुट मैसेज MK, ये आपका हो गया. ठीक है, तो इफ़ यू सी फ्रॉम द फिगर वी कैन सी MK डबल डैश इज इक्वल टू MK-2 एक्सॉर MK-3 एंड MK डैश इज इक्वल टू फाइनली द स्क्रैम्बल्ड आउटपुट एंड इज इक्वल टू MK एक्सॉर MK डबल डैश. ओके, तो व्हाट स्टेप यहाँ पे चीज़ें लिखा हुआ है, क्या हमें करना है, कैसे करना है, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ इस एग्जांपल में. आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी. लाइक हमने सारे को लिख लिया है. ये हमारा इनपुट मैसेज हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया, ये हमारे जो शिफ्टिंग के बाद बिट्स हमारे हैं MK-1 MK-2 MK-3 एंड M डबल डैश के, ये आपका वो हो गया. और ये ऑलरेडी रिटन इन द क्वेश्चन दैट एज्यूमिंग द ऑल द इनिशियल कंडीशन विल बी द 0. तो हियर इन द फर्स्ट लाइन हियर वी टेक ऑल द MK डैश MK-1 MK-2 MK-3 विल बी 0. देन आफ्टर दैट हमने इसको इनिशियल कंडीशंस को हमने 0 मान लिया. तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा जो MK डैश है वो MK-2 और MK-3 का एक्सॉर है. तो हियर वी गेट द 0. ठीक है,
तो अब हमारा ये आउटपुट क्या होगा, अब आपने नेक्स्ट लाइन के लिए अब हमें ये एम के पता है, ठीक है, और ये एम के डबल डैश पता है, बिकॉज अगर आप 0 1 का एक्सॉर करेंगे वी गेट 1, ये आपको 1 फाइंड हो गया। एंड आफ्टर दैट व्हाट विल बी द नेक्स्ट ऑल द बिट्स, तो नेक्स्ट ऑल द बिट क्या होगा, सिंपली आप 1 बिट राइट शिफ्ट करेंगे, तो 1 बिट जब राइट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, आपको चीज़ें दिख रहा होगा। 1 बिट राइट शिफ्ट किया तो आपने ये 0 यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये आपका यहाँ आ गया, ठीक है। अगेन अगर हम इस लाइन को वॉच करें तो देयर इज़ द 2 0 0 0, अगेन द एम के डैश इज इक्वल टू जी डबल डैश इक्वल टू 0, एंड इफ़ यू टेक द एक्सॉर विथ दिस बिट, दिस सेकेंड बिट ऑफ द मैसेज, then again we get here mk dash is equal to 0. Then what will be the next bit, mk minus 1 and mk minus 2 and mk minus 3, ये आपके बिट्स क्या होंगे। तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपको बस शिफ्ट कर देना है, 1 बिट आपको राइट शिफ्ट कर देना है, मीन ये 1 आपका यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये आपका 0 यहाँ आ गया, ठीक है। अगेन टेक दिस 2 बिट्स एक्सॉर लेंगे 0 0 का, अगेन वी गेट 0, एंड दिस 0 इज़ द अगेन वी टेक 0 एक्सॉर विथ दिस वन, इस वन से हम करेंगे एक्सॉर, देन वी गेट 1 हियर। 0 1 का आपका एक्सॉर क्या होता है, आपका 0 1 का एक्सॉर आपका होता है 1 हो गया, ठीक है। देन आगे के बिट्स क्या होंगे, सिंपली आपने इसको राइट शिफ्ट कर दिया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से आपकी ये प्रोसेस चलता रहेगा, जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आपकी स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, एंड फाइनली वी गेट द आउटपुट। इस तरीके से शिफ्टिंग करेंगे। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है कि आपको एम के डैश फाइंड करना है। एम के डैश आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, और एम के डैश फाइंड करने के बाद सिंपली वी टेक द एक्सॉर विद द मैसेज बिट, ठीक है, जो करंट बिट आ रहा है और जो शिफ्टिंग होने के बाद जो हमारे बिट्स आ रहे हैं उनको आप वहाँ पे एक्सॉर ऑपरेशन करेंगे, और एक्सॉर ऑपरेशन करने के बाद आपको एम के डैश आउटपुट मिल जाएगा। Then after the 1 bit shifting bit of the mk dash and mk minus 1 and mk minus 2 and mk minus 3, and we get the next combination to produce the output mk double dash and mk. इस तरीके से प्रोसेसिंग करेंगे, एंड एट लास्ट फाइनली हियर वी गेट message like that. This is the message, this is the complete message mk dash for the input sequence for this. ये जो हमारा इनपुट सीक्वेंस है, इस इनपुट सीक्वेंस के बिहाफ पे हमें ये आउटपुट आपको फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी आपको यही स्टेप करना था, बट मैं आपको यहाँ पे अनस्क्रैम्बल्ड का भी फिगर बना के मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ किस तरीके से इजीली हम फिर से मैसेज को हम फाइंड यहाँ पे कर सकते हैं। वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कैसे होगा। तो वो डिस्कस करने के लिए हमें जस्ट लाइक हमें इसका मिरर इमेज बनाना पड़ेगा। तो मैंने नेक्स्ट पेज पर इसका मिरर इमेज बनाया है, आपको थोड़ा सा अगर क्लियर हो तो थोड़ा देख लीजिए आप लोग। एक मिनट। ओके, तो ये आपका जो फिगर है, अगर आप चीज़ों को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये जो फिगर है जस्ट उसी का मिरर इमेज है जो आपका बना था। एक मिनट और होल्ड करें आप लोग। ओके, तो आपको यहाँ दिख रहा किस तरीके से ये एम के मैसेज आपका D1 में जा रहा है। तो हमने भी ये जो हमने जो एम के मैसेज लिया हुआ है ये आपका D1 में गया, फिर D1 से D2 विद D3 ये हो गया आपका, ठीक है। एंड आफ्टर दैट देयर इज़ द टैप गेन आपको निकला हुआ है ये MK-3 और MK-2 हमने ये मान लिया, ठीक है। ये कनेक्शन है बिकॉज सिंपली आप इसको मिरर इमेज लेंगे, एंड हियर वी गेट द M डबल डैश के, एंड फाइनली वी गेट द MK। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो हमने क्या किया, हमारा जो ये स्क्रैम्बल जो सर्किट था हमने उसको मिरर इमेज बना के हमने इसको अनस्क्रैम्बल सर्किट बना दिया। अनस्क्रैम्बल सर्किट होने के बाद सिंपल हमें वही स्टेप फॉलो करना है जो अभी तक हमने किया है। तो हमें क्या स्टेप फॉलो करना, अगेन सेम सर्किटरी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो कैसे करना वो हम देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं इसको मैं।
तो इफ़ वी सी, अगर आप देखें हमारा फाइनली जो हमारा मैसेज है एम के इज़ इक्वल टू एम के डैश और एम डबल डैश के, इसके थ्रू आपको मिलेगा। तो अभी आपने पिछले वाले से ये एम के डैश को आपने ऐसे यहाँ पे राइट कर लिया, सिंपली यहाँ पे राइट कर लिया, ठीक है। और इनिशियल में हम इनकी वैल्यू से जीरो ले लेंगे, जैसे हमने इनिशियल कंडीशंस में लिया वो हमने जीरो ले लिया। एम के माइनस वन, एम के माइनस टू, एम के माइनस थ्री और एम डबल डैश किया, हमने इसको यहाँ पे जीरो ले लिया। और जीरो लेने के बाद हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो क्या स्टेप फॉलो किया, अगर आप देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे चीज़ों को अगर ऑब्ज़र्व करें अगर आप लोग, तो हियर वी गेट एम के। फर्स्ट हमारा एम के क्या होगा अब वो आपको ऑब्ज़र्व करना है। तो एम के जो हमारा था, एम के आपका ये आपका हो गया एम के जो आपका ये जो बिट मिल रहा है आपका एम के डबल डैश और दिस बिट 1, इसका आप एग्जॉर लोगे क्योंकि यहाँ देखिए राइट किया हुआ है एंड वी गेट 1, ये आपको 1 फाइंड हो गया। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट बिट ऑफ द सेकेंड लाइन किस तरीके से होगा, सिंपली शिफ्ट द राइट 1 बिट शिफ्ट आप ऐसे करेंगे एंड वी गेट द ऑल द टर्म इज इक्वल टू 0, आपको ये मिल गया। एंड आफ्टर दैट सिंपली, और ये हमारा एम डबल डैश क्या, अगेन हियर वी टेक द अगेन एग्जॉर ऑफ एम के माइनस टू एंड एम के माइनस थ्री, अगर आप इन दोनों का एग्जॉर लेंगे अगेन वी गेट द 0। और ये आप 0 जो है इस एम के डैश वाले से आप एग्जॉर करेंगे देन वी गेट अगेन 0 हियर, क्योंकि अगर आपका 0 0 है तो वी गेट 0। उसके फिर अगेन आगे के नेक्स्ट बिट क्या करना, आपने शिफ्ट कर दिया, ये आपने शिफ्ट कर दिया तो वी गेट 100 मीन्स 100 आपको बिट्स मिल गए। अगेन कैलकुलेट एम के डबल डैश, आपको मिल गया ये 0 मीन्स एग्जॉर ऑफ दिस 2 0। और ये जो 0 फाइंड हुआ है आप ये इस बिट के साथ एग्जॉर करेंगे दैन वी गेट दिस 1, ये आपको मिल गया। फिर आपने 1 बिट की शिफ्टिंग की, आपने ये 1 बिट की शिफ्टिंग की, शिफ्टिंग करने के साथ आपको क्या मिला ऑब्जर्व हुआ है यहाँ पे, आपने शिफ्टिंग किया तो शिफ्टिंग करने आपको ये 10 मिला, इस 10 का आपका एग्जॉर करेंगे 1 होगा, और ये 1 आप जब इसके साथ एग्जॉर करेंगे एम के डैश के साथ एंड वी गेट हियर 0, ये आपको 0 फाइंड हो गया, ठीक है। अगेन आप 1 बिट को राइट शिफ्ट करोगे मीन्स ऑल द 3 बिट्स आर, ये कहाँ से मिलेगा, जो पिछले लाइंस की हमारे राइट शिफ्ट करेंगे वी गेट 101, then take the for this one take the XOR of 0 1 and we get 1 here and this one is XOR with this 0 and we get 1 here, ये आपको 1 मिल गया। सिमिलरली फिर हमने राइट शिफ्ट किया वी गेट दिस लाइन, ये लाइन आपको मिला। फिर आपने ये 1 0 का XOR किया वी गेट 1 एंड फॉर दिस 1 अगर आप इसको XOR करेंगे इससे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 1 1 का आपको 0 मिल गया, मीन्स आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। एंड आफ्टर दैट अगेन हमने शिफ्टिंग किया तो आपको वी गेट दिस लाइन, ये मिला 1 1 का 0 और 0 0 को फिर आपने किया इसके साथ एग्जॉर किया 1, ये आपको 1 मिल गया, ठीक है। अगेन 1 बिट शिफ्ट होने के बाद आपको क्या मिला, 1 बिट जब आपने शिफ्ट किया तो नेक्स्ट लाइन आपको ये मिला, फिर आपने 0 1 का एग्जॉर किया वी गेट 1 और ये 1 आपने इसके साथ एग्जॉर किया एंड वी गेट द नेक्स्ट मैसेज बी इज इक्वल टू 0। आफ्टर दैट अगेन 1 बिट शिफ्ट किया आपने, शिफ्ट करने के बाद आपको ये 1 1 0 मिला और ये 0 0 का फिर आपने एग्जॉर किया इस 0 के साथ एंड वी गेट 0 हियर, ये आपको मिल गया। एंड फाइनली एट लास्ट फिर आपने शिफ्ट किया, फिर 1 1 का 0 मिला, फिर आपने 0 फिर 0 का फिर आपने जब 1 किया एंड वी गेट 1। तो आपको यहाँ पे चीज़ें ऑब्जर्व होगा किस तरीके से आपने जो स्टेप्स किया, अगर आपको चीज़ें अगर ऑब्जर्व हो रही हों तो अगर हम यहाँ पे लिख दें आपको यहाँ पे मैसेज क्या मिला एक्चुअली, क्या मैसेज हमारा वो मैं राइट कर देता हूँ। तो मैसेज आपको मिला है 1 0 1 0 1 0 1 ट्रिपल 0 1, ये आपको मैसेज मिला है। अब इसको आप मैच कर लें ऊपर वाले के साथ, अगर आप मैच भी करना चाहते हैं ये देख लें आप लोग, इसके साथ मैच करें आप 1 मिनट मोर। ये जो हमारा है इसको आप इसके साथ मैच करें, मैच करने क्या मिला आपको देख लीजिए 1 0 1 0 1 0 1 0 हो गया, फिर 1
000 फिर 1। आपने ऑब्जर्व किया किस तरीके से आपने स्क्रैम्बल के हेल्प से आपने एम के डैश आउटपुट को फाइंड किया और उसी एम के डैश को यूज करके फाइनली आपका क्या ट्रांसमिटेड डेटा था वो आपने देख लिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इजीली यहाँ फाइंड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि अगर ये सर्किट अगर पर्टिकुलर रिसीवर के पास है तो इजीली वो किसी भी डाटा को वो रिसीव कर सकता है और पर्टिकुलर रिसीवर रिसीव कर सकता है अगर उसका अनस्क्रैम्बल्ड सर्किट है तो आपने देखा यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व किस तरीके से ये जो आपका स्क्रैम्बलर है वो एक डेटा इंक्रिप्शन की तरह है जो ट्रांसमीटर में कोड करके हम भेजते हैं और पर्टिकुलर रिसीवर उसके पास अगर अनस्क्रैम्बल सर्किट है तो उस अनस्क्रैम्बल सर्किट से वो जो है एक्चुअल डेटा हमारा क्या ट्रांसमिट हो उसको जा सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। ओके, थैंक यू।